So, welcome friends once again to our estimating and costing very interesting subject, of which we are now landing into the final destination. That is the unit number 6, which is nothing but a topic on the valuation of the property. The valuation of any property, on that this unit is there. Very important, as just now I have told you that it is not only important from your exam point of view, but it is also important from your future point of view also, because as soon as you get the graduation degree, you become a registered valuer. जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, तो वैसे आप वैल्यूएशन का डिग्री मिलने के बाद में यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, सिर्फ आपको एक ही करना पड़ता है कि एक इंडियन वैल्यूअर्स एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है, वहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको एएमआई वगैरह की डिग्री मिलती है, तो वैसे ही ये वैल्यूअर का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सो वी विल मूव नाउ इनटू द टॉपिक। This is the syllabus. Purpose of the valuation, factors affecting property price and cost, types of values, real estate, tenure of land, freehold and leasehold, sinking fund, depreciation, है ना। मैंने आपको बोला था कि डेप्रिसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैं बताता हूँ आपको, है ना। Yeah, this is, as its application is for our practical purposes, so therefore we must be able to understand all the concepts. Depreciation and its methods, capitalized value, methods of valuation, net and gross income, and rent fixation, है ना। किसी बिल्डिंग का जब हम रेंट पे देते हैं, तो उसका रेंट हम कैसे ठहराया जाए। हम तो ठीक है, ऐसे हमारे आजू बाजू के घर भाड़े से दे देते हैं, या हमारा खुद का भी तो हम बेस्ड ऑन आवर सराउंडिंग रेंट्स, बट व्हाट शुड बी मिनिमम रेंट, how to fix the rents, etc. That we'll be learning technically and mathematically, systematically. So let us move into the subject. Valuation. What is valuation? It is the art of determining the value of a specific property. किसी अभी अभी तक के हमने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि हम जब एस्टिमेट करते हैं, वेन एवर वी प्रिपेयर द एस्टिमेट or the estimated cost of any civil engineering structure, then we find its cost, or we find the cost of such building which is to be constructed in future। यानी हम बाद में जो बनाने वाले हैं भविष्य में, उस बिल्डिंग की, उस स्ट्रक्चर की, उस डैम की क्या अंदाजे कीमत आएगी। एस्टिमेट यानी अंदाज पत्रक, मराठी में उसको अंदाज पत्रक करके बोलते हैं एस्टिमेट को। So estimating means finding out the cost of any structure which is proposed to be constructed in future. Okay, are you getting me? And what is now the cost or the valuation or the costing? It is nothing but the cost or value of any specific property, any civil engineering structure which is already in existence, जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसकी कीमत क्या है वो ठहराना, यानी उसको वैल्यूएशन करके बोलते हैं। सो इट इज द आर्ट। सो ए वेरी गुड वर्ड इज देयर, इट इज एन आर्ट of determining the value of any specific property, such as the building, a factory, or any engineering structure for specific purpose at specific time and specified place, है ना। तीनों वर्ड है, अब इसका धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ हम देख लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की कीमत निकालना, वैल्यू निकालना, कॉस्ट निकालना, विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। काय के लिए? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किस लिए वो बिल्डिंग हमने बनाई है, जब आप फ्यूचर में वापरना चाहते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, स्पेसिफाइड टाइम, कौन से समय में, है ना। किसी चीज की कीमत, किसी बिल्डिंग की कीमत चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब सुबह दोपहर रात वाली टाइम नहीं, मीन्स
for any period of the year, the value changes. Like we can say now this is the corona period. So the cost or the values of the building are not that much appreciable, because now the market is low due to the corona. All the economic system has gone down, and all the values and the cost has gone down, except petrol and diesel. So specified time is very important. Specific purpose, specified time and specified place, ये भी हम समझ लेते हैं बाद में, कि जैसे एखादी प्रॉपर्टी है, एखादी जगह है, एखादी बिल्डिंग है, सेम क्वालिटी की है, अभी आपने स्पेसिफिकेशन वगैरह सब पढ़ा है, रेट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन, सेम संगमरमर की, ऐसा बोलेंगे हम, मार्बल की बनाई हुई दो जुड़वा बिल्डिंग है, जुड़वा भाई जैसे जुड़वा बिल्डिंग है. One building is constructed at the Sitabardi, Nagpur, and another building is constructed at, say, our Dongargaon. So their cost or their value will not be same, because the value of the property of at Sitabardi, Nagpur will definitely be more as compared to the value of the property in Dongargaon. या एखादा और हम कहीं तो भी भामरागढ़ में एखादी वही तीसरी बिल्डिंग बनाते हैं उसी टाइप की, तो उसकी कीमत और कम रहेगी, क्योंकि कौन जाएगा संगमरमर के महल में रहने के लिए भामरागढ़ में. ठीक है. सो स्पेसिफाइड वैल्यू, अभी धीरे धीरे आपके ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यूएशन. सो द प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज की जो कीमत है ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इज फिक्स्ड बाय वैल्यूएशन. So valuation therefore is an art. It is not like the put the value and get the answer. है ना, ऐसा नहीं है. तो वो आपको, it depends on all these three parameters: specified purpose, specific time and specific place. Okay. So let us move further. What are the how the valuation is being done? The present value of any property is determined, is found out on the basis of rent or the income that property can fetch. And how to determine, how to finalize the valuation now, how to find the value of any building, any structure. Okay. So whether what is the utility of that structure, whether that structure or that building is having certain utility value, like whether how much rent it can give. यदि हम उसको रेंट से देते हैं तो उसका कोई रेंट मिलता है क्या, है ना. इनकम दैट प्रॉपर्टी कैन फेच, वेदर दैट प्रॉपर्टी हैज एनी इनकम, है ना. So that is one of the factors to determine the value, present value of the property. The value of the property also depends on type of the structure, life, maintenance and location. So which type of the structure, है ना. एखादे बार पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ओल्ड हो गई है, लेकिन लेकिन वो अभी भी अच्छे पत्थर से बनी है, जैसे कि हमारा महाराज बाग के पास की बिल्डिंग है, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की, हमारा रेलवे स्टेशन है, या और कहीं हाई कोर्ट की ओल्ड बिल्डिंग्स है, या कोई एखादी जो खराब हुई हुई बिल्डिंग है. तो विच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, whether that structure is of good quality, good structure, or bad structure, dilapidated बोलते हैं उसको, dilapidated यानी टूटा फूटा स्ट्रक्चर. लाइफ उसका कितने साल पुराना है, मेंटेनेंस उसका रेगुलर मेंटेनेंस है क्या, एंड द लोकेशन, अभी मैंने आपको बताया, लोकेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर लोकेटेड एट सीताबर्डी, नागपुर, एंड द स्ट्रक्चर लोकेटेड एट भामरागढ़ or at Dongargaon or at any other location other than Bardi, then definitely that will the value of that structure will depend on the location. So these are the factors. Then valuation is a logical estimate of value on economical decision of the valuer or engineer or architect. है ना, ये तीनों लोग ये करते हैं वैल्यूएशन का काम. तो मेनली वैल्यूअर जो रहता है वो हमारा सिविल इंजीनियर रहता है या आर्किटेक्ट भी करते हैं. तो लॉजिकल एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन.
ऑन इकोनॉमिक डिसीजंस। तो वो जो वैल्यूअर रहता है, he becomes expert slowly and he can find the value of the building depending on all these factors। और कौन कौन से हैं, और आगे में हम देखते ही जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ द वैल्यूज एक्सेट्रा। Valuation of a real estate is a estimation of probable price of the property under consideration। ठीक है, so it is nothing but the estimating the probable price of the property or any structure which is already in existence but which is proposed to be say sold out or to be mortgage। तो वो अंडर कंसिडरेशन का मतलब जो स्ट्रक्चर हमें समझो बेचना है, भाड़े से देना है, या बैंक को गिरवी रखना है, उसको मॉर्गेज करके बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो वैल्यूएशन डिपेंड रह करता है। सो ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यूएशन। वी विल सी नाउ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, प्राइस एंड द वैल्यू। ठीक है, तीनों बहुत अच्छे टर्म है, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। तीनों का लगभग दिखने को, समझने को सभी तीनों सरीके ही लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। कॉस्ट, actual amount incurred in construction of the structure which possesses some value। किसी स्ट्रक्चर को बांधने के लिए जो खर्चा आया, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट। लेने उसको जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, जो हमने अभी रेट एनालिसिस में पढ़ा, लैंड की कॉस्ट है, जमीन की कीमत है ना। तो ये सब की जो ये है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट। कॉस्ट, the structure's cost is different than the price, and the cost is also different than the value। okay, so let us see how we can differentiate it। so cost, मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गई है कि बांधकाम करने के लिए उसको जो खर्चा है, वो कहीं भी बांधकाम करे, that location is not important factor, because the construction for constructing some building at सीताबर्डी, नागपुर, डोंगरगांव, भामरागढ़, material will be same, labor will be same, only transportation may be bit different, but basic construction cost, सब equipment वगैरह, all the equipments etc, that will be same। so therefore that amount incurred in construction of the structure which possesses some value, है ना। बिना वैल्यूलेस बिल्डिंग या वैल्यूलेस स्ट्रक्चर के इसको बांधकाम को कोई कॉस्ट नहीं रहेगी, लेकिन जिसको कुछ ना कुछ तो भी वैल्यू है, घर के रहने के लिए है, ऑफिस के लिए है, कॉलेज के लिए है, स्कूल के लिए है, पानी रोकने के लिए डैम है, सो उसकी जो कीमत है उसको कॉस्ट बोलेंगे। कॉस्ट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल यानी मुद्दल जिसको बोलते हैं मराठी में, कॉस्ट इज द कैपिटल या कीमत बोलेंगे, पैसा, capital required for construction of the structure plus structure बांधने के लिए खर्चा plus expenditure incurred towards the labor for construction and the equipment also, some tools and plants, is known as the prime cost। so expenditure incurred towards the rent, management, salaries to the staff for their services is called as the supplementary cost। so cost is again further divided into two parts। the first is the material and labor cost, that is called as the prime cost। okay, and other than material and labor, we need some expenses to be done for renting the land, for management, for the staff, for constructing the site offices, salaries to staff। okay, ये this is called as the supplementary cost, overhead charges इसको बोलते हैं। so total cost is equal to prime cost plus supplementary cost। okay, so this is all about the cost, in exam, if your exam will be in written, then they definitely ask what is the difference between the cost, price and the value। now the price, so it is nothing but price of any structure is the cost of the property। जो पहले हमने कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट ऑफ द सेलर, है ना। कोई भी जब एकादी चीज बनाता है और उसको बेचता है तो उसके ऊपर में सम प्रॉफिट इज देयर। सो कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट ऑफ द सेलर इज नथिंग बट द प्राइस, यू कैन से, या इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं हम हमारे कॉमन इसमें ना। एखादा पेन बनाया हमने, एखादी मोटरसाइकिल बनाया,
तो मोटरसाइकिल बनाने में जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, कुछ पेंटिंग लगा, कुछ इक्विपमेंट्स लगे, उसके लिए हमें जगह खरीदना पड़ा, है ना। ये बहुत सारी चीजों मिलके जो कोई हमने रेट एनालिसिस में देखा, तो रेट एनालिसिस से जो रेट है और जो भी वो है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल जस्ट लाइक द पेन और द मोटरसाइकिल, प्लस अभी वो बनाते किस लिए, बेचने के लिए. So there is profit of the seller. So cost of the property plus profit of the seller is equal to price. So price of the property is determined by the position of the demand and supply of the property in the prevailing market. है ना. प्राइस फिर से अभी काय के ऊपर भी डिपेंड रहेगी कि डिमांड एंड सप्लाई. बहुत डिमांड है तो आप ज्यादा कीमत पे भी एक आधी वस्तु बेचते हैं, ठीक है. लेकिन बेसिकली प्राइस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द सेलर. सो डिमांड इज मोर, द सेलर्स प्रॉफिट विल बी लेस मोर. इफ द डिमांड इज लेस, देन द सेलर वो कम कम प्रॉफिट में बेचेगा, है ना. अभी जैसे कोरोना पीरियड है तो कुछ बिल्डिंग वगैरह हो सकता है कम इसमें रेट में मिलेगी आपको कॉस्ट. सो प्रॉपर्टी में बी सोल्ड अबो और बिलो इट्स कॉस्ट. तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आप उसकी जो कॉस्ट है उससे ज्यादा में भी बेच सकते हैं, कम में भी बेच सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना. Let us try to understand now. We will move on to third is the value. Last sentence is very important. The property may be sold above or below its cost. यानी उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे आप ज्यादा में भी बेच सकते हैं, ज्यादा में बेचा तो वो आपको प्रॉफिट हो गया. और निगेटिव प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, जिसको लॉस बोलेंगे हम. सो इफ वी सेल द प्रॉपर्टी बिलो इट्स कॉस्ट, बिलो इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा कब होगा, व्हेन द डिमांड इज वेरी लो और देर इज नो डिमांड. सो यू हैव टू क्रिएट द आर्टिफिशियल डिमांड. उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो ओरिजिनल कीमत है उससे कम में बेचना पड़ेगा, है ना. या बहुत बार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी आते हैं कि हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम वो कम में आया तो भी बेच देते हैं. सो दैट इज द निगेटिव प्रॉफिट और द लॉस ऑफ द सेलर. सो कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट ऑफ द सेलर. प्रॉफिट इज द पॉजिटिव प्रॉफिट and negative profit is loss. Then the cost of the property minus negative profit, that is loss. Then the cost, then the selling price will be less than the cost. Now the third and very important is value. It is defined as the monetary measure of desirability of ownership of a specific property for specific purpose, है ना. कॉस्ट अभी हमारे ध्यान में आ गई, बाद में हमने प्राइस देखा, and third is the value. It is defined as the monetary measure. किसी प्रॉपर्टी का पैसे में उसकी कीमत, पैसे में तराज, जिसको हम पैसे में उसका क्या बोलेंगे, उसको मॉनेटरी मेजर बोलेंगे, समझो. अभी मराठी हिंदी थोड़ा ढूंढते हैं तब तक के. इट इज डिफाइंड एज द मॉनेटरी, या पैसे में उसकी तुलना, मॉनेटरी मेजर of the desirability of ownership of a specific property for specific purpose, है ना. एखादे बार ऐसा होता है, ये यहाँ पे डिजायरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. जैसे एखादा लोकेशन पे घर है, कहीं भी एखादा, अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए ही हम बरडी के ऊपर समझ लेते हैं, नागपुर में है इसलिए सीता बरडी पे. उसकी कॉस्ट तो आपके ध्यान में आ गई कि इट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. एखादी बिल्डिंग है, बाद में उसकी प्राइस भी आ गई कि उसके मार्केट में क्या चालू है, प्रॉफिट वगैरह पकड़ के उसकी एखादी प्राइस आई. अब क्या हो गया कि इफ आई पजेस सच प्रॉपर्टी, मैं एखादी बरडी के ऊपर में एखादी बिल्डिंग या एखादा फ्लैट में अब मेरे पास में है, और अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी को वो फ्लैट परचेस करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन मी that at what price I should sell.
if that property is with me and my father and my grandfathers etc. मेरी पुरानी हवेली है, पिछले 200 साल से मेरे पास में है, तो नॉट नेसेसरी कि उसकी प्रेजेंट जो प्राइस है उसमें मैं बेचूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे ऊपर है, मैं मार्केट में कोई रेट है तो मैं बोल सकता हूँ किसको खरीदना है क्या, तो ये फलाने फलाने कॉस्ट में आपको पूरा पुराता है तो खरीदिए, दैट इज द वैल्यू, है ना। और एक फॉर एग्जांपल आपको मजे की बात बताता हूँ, आप सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैक्सिमम ऑफ अस प्ले क्रिकेट, एंड पैरेलल टू दिस इज वेरी दिस थिंग, and there are various bats available in for playing the cricket, है ना। महंगी से महंगी बैट है, कोई तो भी कंपनी प्रोड्यूस करती है, all the players use the bat, and one bat may be with Mr. Sachin Tendulkar, सचिन तेंदुलकर के पास में एक बैट है, और वो बैट के ऊपर में उसने अपनी एक सिग्नेचर कर दिया सचिन तेंदुलकर, और वो बैट से उसने एक सेंचुरी मार दिया, 100 रन निकाले। तो वो बैट की जो पहले तो कॉस्ट आप समझिए, बैट बनाने के लिए आया हुआ खर्चा, दैट इज द कॉस्ट, बैट का लकड़ा वगैरह जो भी है, बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोड्यूसर का प्रॉफिट पकड़ के एक बैट की कीमत कुछ भी होगी, 5,000 10,000 रुपए, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, है ना, महंगी से महंगी बैट। लेकिन अब व्हेन द तेंदुलकर सिग्नेचर इज देयर ऑन दैट बैट, एंड व्हेन ही हैज स्कोर्ड 1 सेंचुरी विद दैट बैट, तो उसकी कीमत एकदम बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। अभी आपको मालूम होगा नीरज चोपड़ा, डू यू नो हु इज नीरज चोपड़ा? ही हैज वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलियन थ्रो, भाला फेंक जिसको बोलते हैं, उसमें उसने अभी के ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक उसको मिला। ही हैज प्रेजेंटेड हिज दैट जैवलियन, वो जो भाला है उसने वो मोदी जी को प्रेजेंट दिया, और वो भी भाला उसको किसी तो भी दूसरे प्लेयर ने खेलते खेलते दिया था, वो उसके पास का ओरिजिनल था ही नहीं जिसमें उसने गोल्ड मेडल जीता। सो ही हैज गिवन दैट javelin or that bhala to our prime minister Mr. Narendra Modi, and Modi ji has immediately वो ऑक्शन करते हैं उसका, वो क्या करते हैं, उन्हें जो भी गिफ्ट मिलती है ऐसी वस्तु है तो उसका वो ऑक्शन करते हैं, उसको इसमें बेचते हैं, और वो पैसा देश के काम में लाते हैं फॉर सम सोशल वर्क। So that javelin, which may not be costing more than 5,000, 10,000 or say 1 lakh rupees, जो भाला था वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के ऊपर नहीं होगी, अपने को तो मालूम भी नहीं उसकी क्या कीमत है। So the value or in auction that javelin has been purchased for 1.5 crores, 1.5 करोड़ में वो भाला खरीदा। एक तो पहली बात यानी उसके ऊपर नीरज चोपड़ा का भाला गोल्ड मेडल मिला, और ऊपर से वो मोदी जी के पास में था। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऑफ दैट कमोडिटी। सो कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, आप सबके ध्यान में, जितने क्लास में है उतने सबके ध्यान में तो जरूर जरूर आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी हम आगे में चलते हैं, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द वैल्यूएशन, क्यों क्यों है भाई वैल्यूएशन की, क्या है हमें जरूरत। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया किसी वी एज ए सिविल इंजीनियर वी आर मेनली कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ द एनी स्ट्रक्चर, वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदने के लिए विच इज इन एग्जिस्टेंस, उसके लिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये जो प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर म्यूनिसिपालिटी के टैक्सेस है, इसके ऊपर नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के टैक्सेस है ना, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। तो वो टैक्स की कितना % टैक्स लगाना, उसके लिए भी वो बिल्डिंग का वैल्यू मालूम रहना जरूरी है ना। नई नई बिल्डिंग बनी है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जैसी जैसी बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी उसको डेप्रिसिएशन करके बोलते हैं, उसकी कीमत कम होती जाती है। कीमत यानी उसकी
फिजिकल कीमत बोलेंगे हम, और द प्राइस विल बी लेस बट द वैल्यू मे नॉट बी लेस, है ना। एखादी बार मेरी एखादी 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग है, सब दरवाजे फरवाजे टूट गए हैं, लेकिन किसी को चाहिए तो मैं अपने दिल से उसकी कीमत ठहरा सकता हूँ, चाहिए तो ले, नहीं तो चलो छोड़ो पीछे। सो फॉर टैक्सेशन पर्पज द वैल्यू इज नीडेड। रेंट फिक्सेशन, अभी हम पढ़ने ही वाले रेंट कैसा निकालते हैं। किसी बिल्डिंग यदि रेंट पे हम देते हैं, किराए पे देते हैं, तो कम से कम उसका किराया कितना आना चाहिए, या गवर्नमेंट भी जो बिल्डिंग के किराए से लेती है तो उसका किराया कैसा वर्कआउट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू। इंश्योरेंस पर्पस, है ना, बहुत सारे आपको मालूम है कि बिल्डिंगों के इंश्योरेंस किए जाते हैं, है ना। पर जलाने का बिल्डिंग जलने से उसका नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस रहता है, चोरी का, थेफ्ट का इंश्योरेंस रहता है, कोई भूकंप आया तो उसके कारण कोई टूट फूट बिल्डिंग की हो गई तो उसका इंश्योरेंस रहता है। सो फॉर दैट पर्पज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज नीडेड। सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, मैंने आपको बताया कि किसी बैंक में से यदि कर्जा लेना है वह बिल्डिंग के ऊपर में, वह स्ट्रक्चर के ऊपर में, तो फिर उसकी वैल्यू मालूम होना बहुत जरूरी है। कोर्ट फी, हम बिल्डिंग खरीदते हैं बेचते हैं तो हमें कोर्ट में उसकी फी लगती है। सो दैट फी is based on again, sir, that fee is again certain percentage of the value or the price or the cost of the structure. कंपल्सरी एक्विजिशन, बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉर गवर्नमेंट पर्पज स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर और गेट दैट बिल्डिंग। कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई ऐसे रेगुलर नहीं करती है, लेकिन इन सर्टन इमरजेंसी सिचुएशन it acquires, it gets possession of that structure, of that building, of that land। जमीन भी ऐसी वो ये कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अल्टीमेट वो पावर है, गवर्नमेंट को नहीं रोक सकते आप। तो उसकी वैल्यू मालूम रहना आपको जरूरी है। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो द वैल्यूएशन इज नीडेड। देन द बेटरमेंट चार्जेस मीन्स द डेवलपमेंट चार्जेस। The betterment charges are fixed upon value of the property before and after development of the property। प्रॉपर्टी डेवलप होने के पहले और प्रॉपर्टी डेवलप होने के बाद में उसके जो भी डेवलपमेंट चार्जेस है, बेटरमेंट चार्जेस है, दे आर अगेन डिपेंड ऑन द वैल्यू, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि गांव के बाहर, जैसे नागपुर की ही सिचुएशन समझो, 20, 25, 30, 40 साल पहले, ये जो बेसा बेल तरोड़ी मनीष नगर है, so there were only agricultural farms at that time, so no development was there, so the betterment charges were very less at that time, and the value of the property was also very less, plots. But now as all that Besa, Bel Tarodi, Manish Nagar and all that area has developed, so now the value of the property has also increased, are you getting me, and the betterment charges, and for preparing the balance sheet, है ना। बहुत सारी कंपनियां ऐसी रहती है, जैसे कि कोई टाटा की कंपनी है, LIC है, और कोई और अंबानी के बहुत सारे बड़े बड़े ये है, गवर्नमेंट के भी ऑफिसेस वगैरह है। सो दे हैव टू सबमिट एवरी ईयर द अकाउंट्स ऑफ दैट ईयर। तो उसमें जो भी उनके पास में प्रॉपर्टी रहती है वो बैलेंस शीट में उसकी कीमत बताना जरूरी जरूरी रहता है। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो द वैल्यूएशन इज नीडेड। Now the various factors affecting the value of the property that we will learn. The location, price index, supply and demand, rise in population, rent restriction act, and some abnormal conditions. So we will discuss one by one. Location. Factors affecting the value of the property. Location, as just now we have discussed, the property which is located at the prime location in certain city like the Bombay, Pune or Nagpur will definitely be more than the same property that has been located in certain remote area. ठीक है, तो location you all must have got. Now the price index,
है ना, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन द प्राइस इंडाइसेस रहते हैं, प्राइस इंडेक्स रहते हैं, गवर्नमेंट पब्लिश करता है ना। या आप सीधे से सोच सकते हैं कि शेयर मार्केट आप में से कुछ मालूम होगा, तो शेयर मार्केट ऑलवेज गोज अप्स एंड डाउन्स अकॉर्डिंग टू अगेन सप्लाई एंड द डिमांड। तो वो प्राइस इंडेक्स के ऊपर भी वैल्यू डिपेंड रहेगी, हाउ मच इज द प्राइस इंडेक्स, देन सप्लाई एंड डिमांड। इफ द प्रॉपर्टीज डिमांड इज मच मोर एज कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी और सप्लाई, तो फिर वो उसके ऊपर भी वैल्यू बढ़ेगी उसकी। या बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फ्लैट्स है, खाली है, लेकिन डिमांड कुछ भी नहीं है, यानी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो नेचुरली उसकी कीमतें कम होगी। राइज इन पॉपुलेशन, you all know that we are increasing in a geometric proportion. We have achieved a world record. भारत का जो पॉपुलेशन है वह दूसरे कुछ नहीं, अभी ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन से बढ़ते जा रहा है, राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रहने के लिए घरों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, घरों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो पॉपुलेशन राइज के कारण भी वैल्यूएशन आल्सो डिपेंड्स। रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, है ना, गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स रहते हैं, रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट करके बोलते हैं उसको, तो उस हिसाब से भी वेदर द गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड द रेंट्स इन सर्टेन एरिया और हैज अलाउड टू इंक्रीज द रेंट्स, है ना, किराया, तो फिर उसके ऊपर भी वैल्यू डिपेंड रहेगी। सर्टन एबनॉर्मल कंडीशंस आर देयर, the value of the property decreases due to abnormal conditions, for example riots, war, etc, है ना। अभी हम ऐसे ही मजाक के तौर पे लेते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल कि एक आधी प्रॉपर्टी है, बहुत ताजमहल जैसी प्रॉपर्टी है बिल्कुल, या एक आधा राजमहल जैसा रहता है, उतनी फैसिलिटीज है, 5 स्टार फैसिलिटीज, but that property or that bungalow or that Raj Mahal is located at the India Pakistan border, बाकर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर में है। अरे जहां रोज तोप गोले चलते हैं, वहां अपने जान की कोई खातिर करेगा कि वो 5 स्टार बिल्डिंग में रहने की इच्छा रखेगा, है ना। जान बची तो लाखों पाए बोलते हैं, सर सलामत तो सर पगड़ी 50, सर सलामत तो पगड़ी यानी बिल्डिंगे 50। तो दैट इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल कंडीशंस, वेदर दैट प्रॉपर्टी का लोकेशन बोलो या एबनॉर्मल कंडीशन, या बहुत बार ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने बताया कि राइट्स यानी जहां बहुत सारे दंगे होते हैं, राइट्स है ना, दंगे, दंगे फसाद अपने को कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारा सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो कि वी आर डिवाइडेड on the religion, we are divided on politics, we are divided on our all our caste, है ना। हमारे को इतना अच्छा होशियार बनाया है गवर्नमेंट ने और सबने अभी तक के, कि हम धर्म के ऊपर में झगड़ते हैं, जात के ऊपर में झगड़ते हैं, और बाकी भी सभी हमारा भारत में ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश झगड़ता है, वो कभी हमने देखा आसाम और मिजोरम में कि पुलिस में ही फाइटिंग हो गई, एक ही देश के दो है। सो दे आर सच कंडीशंस आर कॉल्ड एज द, वहां पे ऐसे राइट्स, राइट्स यानी दंगले, और वॉर यानी भारत पाकिस्तान वॉर जैसा। तो या एक आधे बार ऐसा भी हो सकता है कि एक आधी प्रॉपर्टी है, वो हर साल बाढ़ आया तो बाढ़ में डूबती है, 5 स्टार है, 5 स्टार होटल है, ताजमहल है, but every year as the flood comes it gets submerged into the water. So what is the use of that property then? Okay, who will take the risk to live in such property? कौन अपनी जान दाव पे लगाएगा ऐसे प्रॉपर्टी में? So that is called as the abnormal condition on which the value of the property depends, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत राजमहल बनाते हैं और फिर कोई वहां पे कुछ और बहुत सारी चीजें होती है, तो that also affects. Now we are moving into a very nice concept which is included in our syllabus, that is called as the real estate.
है ना। ना कोई नया हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है ये यूनिट में, ये ध्यान में रखना। whatever words you must have gone through earlier, the same things we will be discussing, only in but in some technical and mathematical manner, systematic manner. Real estate is the property consisting of land and the buildings on it. रियल एस्टेट किसको बोलते हैं? कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो जब जिस जो जहाँ बिल्डिंग है, और नेचुरली बिल्डिंग है तो किसी लैंड के ऊपर होती है, सो कंसिस्ट ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग्स ऑन इट along with its natural resources, है ना, फार्म हाउस जिसको बोलेंगे आप, such as the crops, minerals or the water. So immovable property of this nature is called as the real estate. एंड इंटरेस्ट वेस्टेड इन दिस, यानी इस ऐसी प्रॉपर्टी जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी नहीं, या जो हर बार फ्लड में जाती है ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी की जिसमें कोई इंटरेस्ट है, which has got certain interest in it, such property is called as the real estate. An item of the real property, buildings or housing in general. तो रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या है? बिल्डिंग्स, हाउसिंग और लैंड्स एक्सेट्रा. Also the business of real estate, the profession of the buying, selling or renting the land, buildings or housing. So the real estate is concept is very important from the point of view of the business in real estate. आप सबको मालूम है कि ये कितना बड़ा बिजनेस है. आज यानी बड़े शहर से लेके तो आपके छोटे छोटे गांव तक के ये रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया है. यानी कहने का क्या है मतलब, कि हर जगह पे कहीं तो भी छोटे छोटे प्लॉट बेचना चालू हो गया है, उसका मार्किंग है, फ्लैट्स बन रहे हैं. कोई भी पहले तो सिर्फ नागपुर और बंबई और बड़े बड़े शहर में फ्लैट्स और फ्लैट स्कीम्स होते थे. नाउ एवरी विलेज, to if you go to the village level you will find, though not flats, but the individual plots and the bungalows etc are being sold. Okay, so the business of real estate, profession of the buying and selling, किसी को खरीदने का और बेचने का धंधा रहता है, उसमें वो कमाई करता है. रेंटिंग द लैंड, कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको भाड़े पे देने में इंटरेस्ट रहता है. रेंटिंग द लैंड यानी जमीन, buildings or the housing, है ना. So this is all about the importance of the real estate that we all must try to understand. Then another concept is called as the land tenure. It can be defined as the manner in which party holds or occupies an area of land, है ना. लैंड टेन्योर एक टर्म है. जैसे अभी तक के हमने व्हाट इज कॉस्ट, प्राइस एंड द वैल्यू we tried to understand. Then we have seen what is the concept of the real estate. Another word which is used in the valuation generally is called as the land tenure. It is defined as the manner in which any owner or the party holds or occupies an area of land. कोई भी आदमी, कोई भी जो रियल इस्टेट से कंसर्न है, जो पोजीशन में है, वह वह जमीन या वह रियल इस्टेट किस प्रकार से ऑक्युपाइड यानी उसके पोजीशन में है. जैसे वेयर वेदर ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर ही इज ए टेनेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वो उसको भाड़े से तो नहीं है. या बहुत बार ऐसा होता है कि उसको पावर ऑफ अटर्नी फॉर 50 years or 100 years that land is being given for use with certain fees or the facilities, है ना. just like in Nagpur, the Nagpur Improvement Trust has the land, and in some part of the Nagpur they have given that land on lease to the various people, and they constructed house over it. 50 years lease, 100 years lease. Okay, every 50 years or 100 years that lease needs to be revised. So that is called as the holding of the property. And somebody holds the property by purchasing it, by owning it. So that is called as the land tenure. The rules governing land tenure are invented by societies to regulate land ownership behaviors. Tenure rules help
define how property rights to land are allocated within society, है ना। यानी ये लैंड टेन्यूअर में और थोड़ा सा आपको और थोड़ा ये मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें सोसाइटीज वगैरह का रेफरेंस है। जैसे एक आधी फ्लैट स्कीम है, 50 flats are there in that flat scheme, then or that flat is say on 50,000 square feet, 50 flats are there and that flat scheme is on 50,000 square feet, then as per the government laws and the society's laws, latest society's laws and the tenure rules, every flat owner, 50 flat है तो one flat owner will hold the land tenure of 1,000 square feet, है ना। 50,000 स्क्वायर फीट है तो 50 लोग है, तो हर जो फ्लैट का मालक है वो 1,000 स्क्वायर फीट जमीन का, वो जिसके ऊपर वो फ्लैट है उसकी उसकी ओनरशिप रहती है, या वो लैंड टेन्योर रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, द मैनर इन विच द पार्टी और द ओनर holds or occupies an area or part of the land, that is called as the land tenure. Various land tenure systems or the various land tenure, you can say classification or the types are communal ownership, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि एक आधी जमीन जो है, एक आधी खेती है, वो तीन चार भाइयों के नाम से रहती है, या एखादे कम्युनिटी के नाम से पूरी जमीन रहती है, दैट इज कॉल्ड एज द कम्युनल ओनरशिप, है ना। कम्युनल ओनरशिप 5-6 लोगों के नाम से एक बंगला, एक फ्लैट, एक लैंड। इनहेरिटेंस यानी एखादा घर मेरा आज है लेकिन वो मेरे पूर्वजों का है, इट इज ऑफ माय फोर फादर्स, है ना, बाप जादू का जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, मुझे मिला, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। तो उनसे मिलते मिलते पंप इनहेरिटेंस से जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। ठीक है, बाद में इनहेरिटेंस है ना, पूर्वजों पूर्वजों से जो पीढ़ी जात जो मिला है दैट इज इनहेरिटेंस। इंडिविजुअल, एखादा क्या होता है कि मैं अपने लाइफ में एखादा प्लॉट, एखादी बिल्डिंग खरीदता हूं, एखादी जमीन खरीदता हूं, दैट इज माय इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल लैंड टेन्योर। लीज होल्ड, भाड़े से, रेंट से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे नागपुर का एनआईटी है, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इट गिव्स द लैंड ऑन लीज फॉर 50 years, 100 years, दैट इज कॉल्ड एज द लीज। ठीक है, रेंट भी नहीं बोलेंगे उसको, भाड़ा नहीं बोलेंगे, लीज बोलते हैं उसको भी, हिंदी मराठी एग्जैक्ट वर्ड आई एम नॉट गेटिंग, लीज होल्ड बोलते हैं उसको। ओके, लीज इज ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। रेंट ये हो गया भाड़ा, जिसको हम किराया करके बोलते हैं। तो ये दिस इज रेंट इज जनरली फॉर 1 year, 2 year और 3 year। गिफ्ट, एखादे बार एखादी लैंड में, मेरी यदि लैंड है तो मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूं, तो उसमें वो टेन्योर जो है, लैंड टेन्योर, द ओनरशिप ऑफ दैट लैंड विल बी बाय गिफ्ट। फ्री होल्ड, है ना, एखादे बार एखादी जमीन जी जैसे इंडिविजुअल जैसा है, फ्री होल्ड means one person holds the land, that is called as the freehold. There is no inheritance, communal, leasehold, rent, gift, etc. That is the freehold. टेनेंट एट गवर्नमेंट विल, ये जैसे नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह जैसे गवर्नमेंट देती है टेनेंसी पे, गवर्नमेंट भाड़े से देती है, किराए से देती है कोई जमीन, तो दैट इज कॉल्ड एज द टेनेंट एट गवर्नमेंट विल। ठीक है, so the types of values etc that we will discuss in our next lecture to come. Today we will take the break here.